Hello everyone, welcome back to our channel. So in this video we are going to discuss about exercise 5.3 question number 1. But before that we will do sum of first n terms of an AP is. So यहाँ पे हमें बात करनी है how to find sum for an AP. AP जब आपको दी हुई है और आपको sum निकालना है उसका, तो कैसे निकाला जाता है? The formula is Sn equal n over 2 in bracket 2a plus n minus 1d. So this is the basic formula of Sn. अगर आपके पास n known है, a known है, n is number of terms, a हमारा first term होता है, then हमारे पास d है, d is common difference. तो ये तीनों चीजें अगर आपको पता है तो आप Sn easily निकाल सकते हो. और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है Sn का. Sn formula is which has n and it has a and it has an. An or l, we define it by last term or an. So यहाँ पे आपके पास क्या दिया होगा? अगर आपको n दिया हुआ है, a दिया हुआ है, an की वैल्यू दी हुई है, तो अगर ये तीनों वैल्यूज हैं तो आप Sn इजीली निकाल सकते हो. अगर आपके पास n है, a है और d है, तो आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज करो एंड यू कैन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स. अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ है. अब यहाँ पे हमारे पास 2a है, तो 2a को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो? एज a plus n minus 1d. सो आप देख सकते हो ये जाना पहचाना फॉर्मूला है. इट इज an, राइट? सो n over 2 a plus an. हम जो ये दो लास्ट टर्म्स हैं उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज an. सो द फॉर्मूला फॉर Sn इज आइदर n over 2 2a plus n minus 1d and other formula is Sn equal n over 2 in bracket a plus an. So these are the two formulas. Let's start with question number 1 of exercise 5.3. So it is find the sum of the following APs 2, 7, 12 to 10 terms. हमें n दिया हुआ है यहाँ पे which is 10 terms. हमें निकालना है कि up to 10 terms तक इसका सम क्या बनेगा. So a आपको दिया हुआ है which is 2, d आपको दिया हुआ है which is 7 minus 2, तो 5 आ जाएगा. n की वैल्यू है, a की वैल्यू है, d की वैल्यू है. So we will use the first formula n over 2 in bracket 2a plus n minus 1d. n की जगह 10 डालेंगे, 10 over 2 हो गया. 2 into a की वैल्यू 2 plus n minus 1 which is 10 minus 1 d की वैल्यू 5. अब 10 over 2 को कैसे लिख सकते हैं? as 5. और 2 into 2 को कैसे लिख सकते हैं? 4 plus 9 into 5. Then you have 5, 4 plus 45. 5 into 49. 49 into 5 is 5 at the back, 4, 24, 245. So your answer is 245. मतलब कि अगर आपकी AP 2, 7, 12 और एंड होती है लास्ट टर्म, जो भी लास्ट टर्म होगा 10th टर्म तक, उसका सम 245 आएगा. Let's do the second part now. Second part is minus 37, minus 33, minus 29 up to 12 terms. तो आपका n क्या हो गया यहाँ पे? 12. a क्या हो गया आपका? minus 37. d क्या हो गया आपका? minus 33 minus minus 37. So which is minus 33 plus 37 which equals 4. So a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई. Now we can easily find Sn value which is n over 2 2 into a plus n minus 1d. n over 2 is 12 over 2. 2 into a is minus 37 plus n minus 1. n minus 1 is 12 minus 1 into d which is 4. So 12 over 2 को कैसे लिख सकते हो? as 6. 2 into minus 37 is 4, 1.
minus 74 plus 11 into 4. So you get 6 minus 74 plus 44. 6 into minus 30 equals minus 180. So second का sum आ गया which is minus 180. Let's do the third part which is 0.6, 1.7, 2.8 up to 100 terms. मतलब n कितना हो गया आपका 100. a की वैल्यू कितनी हो गई 0.6. d कितना हो गया 1.7 minus 0.6 which is 1.1. अब हमें Sn की वैल्यू निकालनी है, so it will be 100 over 2 in bracket twice of a which is 0.6 plus n minus 1 into d. d is 1.1. So 100 over 2 is 50 in bracket 0.6 into 2 is 1.2 plus 99 into 1.1. So you have 50, then you have 1.2, then you have is 108.9. So जब आप 108.9 प्लस 1.2 करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 110.1 which equals 5505. So this is your answer for the third part. अब लास्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं which is 1 over 15, 1 over 12, 1 over 10 up to 11 terms. So 1 over 15 क्या हो गया हमारा a हो गया. d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 over 12 minus 1 over 50. अब 12 और 15 का एलसीएम लोगे तो इट इज 60. 12 को हमें 60 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 5. 15 को हमें 60 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इज 1 over 60. डिफरेंस आ गया. अब हमें Sn की वैल्यू निकालनी है. n आपका कितना हो जाएगा 11. Sn equals n over 2, 2a plus n minus 1 d. So n की वैल्यू हो गई आपकी 11 over 2. 2 into a is 1 over 50 plus n minus 1, it is 11 minus 1 into d. d is 1 over 60. So आपके पास 11 over 2 आ गया. नेक्स्ट ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करोगे तो ये 2 over 15 हो जाएगा. नेक्स्ट जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी 10 over 60. सो 0 से 0 कैंसिल भी कर सकते हो. अगर नहीं करना ऐसे ही रखना चाहते हो तो ऐसे भी रख सकते हो क्योंकि एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी. सो 15 और 60 का एलसीएम 60 हो सकता है. 15 को आप 60 कैसे बनाओगे? यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 4. सो इट इज 8 plus 10. 8 plus 10 is 80 over 60. You can cancel 0 with 0, so you get 8 over 6. 8 over 6 को भी cancel कर सकते हैं. So 4 over 3. 2 को 4 से cancel करो, 2 आ गया. So आपका आंसर जो है फाइनल, it will be 22 over 3. Just a second, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है. 8 plus 10 आपका हो जाएगा 18 over 60. So 18 over 60 and 18 over 60 को आप कैंसिल कर दो. 9 over 30 आ जाएगा. Then 3 से कैंसिल कर सकते हो अगेन 3 over 10. So आपके पास फाइनल आंसर आ गया 11 into 3 which is 33 और नीचे बचा है हमारे पास 2 into 10 which is 20. So 33 over 20 is the answer for the fourth part. Start with question number 2 which says find the sums given below. So यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक AP दिया हुआ है which is 7 plus 10 and a half plus 14 till 84. तो यहाँ पे आपको एक तो लास्ट टर्म दिया हुआ है, A की वैल्यू दी हुई है और आप D की वैल्यू निकाल सकते हो फ्रॉम फर्स्ट टू वैल्यूज. तो सबसे पहले we will write A that is 7. D हो जाएगा आपका 10 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 21 over 2. So 21 over 2 minus 7. आप LCM ले लो 2 का. So 21 minus 14. 7 over 2.
D आ गया हमारा 7/2. Then we have an value which is 84. तो आपके पास लास्ट टर्म दी हुई है, आपके पास A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, हमें सम निकालना. तो सम कैसे निकल सकता है आपका? पहले हम n निकालेंगे. n कैसे निकलेगा आपका? an यूज करके. an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d. हमें नहीं पता इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, और उसके बगैर हम कोई भी एसएन का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. सो यहाँ पे an को आप रिप्लेस करोगे 84 से, a को आप रिप्लेस करोगे 7 से, n आपको नहीं पता, d की वैल्यू आपको पता है विच इज 7/2. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 84 माइनस 7, इस 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए, एंड वी हैव n माइनस 1 7/2. अब 7/2 को, इस वाले 7/2 को आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ. पहले 84 माइनस 7 कर लेते हैं विच इज 77, और 2 को ऊपर और 7 को नीचे. सो 7 और 77 कैन बी cut down and we have 11 into 2. So 11 into 2 is 22, and minus 1 अगर left hand side जाएगा तो it will be plus 1. So your n is 23. n की वैल्यू आ गई आपके पास. अब आप सम बहुत easily निकाल सकते हो. Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2. I will use a plus an क्योंकि an का फॉर्म, an की टर्म हमें दी हुई है. So n है आपका 23/2. a आपका 7 है, an आपका 84 है. 23/2 को रिप्लेस नहीं करते, ऐसे ही रखते हैं. 7 plus 84, 7 plus 84 is 91. And when you solve this, आपको आंसर मिलेगा 1046.5. Sum of all the terms will be 1046.5. Let's do the second part for same. सेम तरीके से करना है. आपको a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 34. d की वैल्यू कितनी दी हुई है? 32 माइनस 34 विच इज -2. और an आपको दिया हुआ है 10. अब सबसे पहला हमारा काम है तो फाइंड n की कितनी टर्म्स है यहाँ पे. a प्लस n माइनस 1d. an हो जाएगा 10, a हो जाएगा 34 प्लस n माइनस 1 एज इट इज. d इज -2. अब 10 माइनस 34 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -24, एंड वी हैव n माइनस 1 इंटू -2. अब -2 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे और उसको डिवाइड में लिख दोगे, एंड यू गेट 12. 12 इक्वल्स n माइनस 1, और -1 अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो इट विल बी 13 एज n. 13 की वैल्यू आपकी n आ गई. अब आपने निकालना है सम. सम कैसे निकलेगा? सेम मेथड एज वी डिड इन द लास्ट वन. n/2 a प्लस an. n क्या है आपका? 13 है. 13/2. a की वैल्यू क्या है? 34. an की वैल्यू क्या है? 10. सो 13/2. 34 प्लस 10 इज 44. 2 को 44 से कैंसिल करो एंड यू गेट 13 into 22 which is 286. So sum of all the numbers will be 286. Let's do the third part. Third part is -5, -8, -11 and -230. So a is -5, d is -8 minus -5 which is -8 plus 5, and we get d value as -3. an की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? -230, एंड an is a plus n minus 1d. an की वैल्यू हो गई आपकी -230, a की वैल्यू हो गई आपकी -5, n की वैल्यू आपके पास नहीं है, d की वैल्यू आपके पास -3 है, और -230 और -5 को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओगे तो +5, n minus 1 into -3. -230 plus 5 कितना होता है? -225. -3 को नीचे ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से.
सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 225 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 75 और n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 76 क्योंकि -1 इधर आके +1 हो जाता है। सो n इज 76। अब Sn निकालना है सेम मेथड से, n/2 a प्लस an, n पता है आपको 76/2 हो जाएगा। a इज -5 और an की वैल्यू इज -230। सो 76/2 is 38 and inside bracket we will have -235. So when you multiply these two numbers you get -8930. So this is your answer for question number 2. Let's start with question number 3. It says in an AP given a equals 5, b equals 3, an equals 50, find n and Sn. सो सबसे पहले हमें an की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ an दैट इज a प्लस n माइनस 1 d। अब यहाँ पे हमारे पास an की वैल्यू भी है, a की भी है, d की भी है, वी हैव टू फाइंड n वैल्यू। सो an की वैल्यू कितनी है आपकी 50, a कितना आपका 5, n हमें नहीं पता, d इज 3। सो सबसे पहले आप 5 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, इट विल बी 50 माइनस 5 इक्वल n minus 1 into 3. 50 minus 5 is 45 equal n minus 1 into 3. अब ये जो 3 है आपका लेफ्ट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी 45/3 equal n minus 1. 45/3 is 50 और माइनस वन को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओगे तो इट विल बी 15 plus 1 as n, or you can write it as 60. n is 16. Now we have to find Sn. Sn means S16 here क्योंकि n की वैल्यू हमने अभी निकाली, it is 60. So n value n/2, Sn value is n/2 2a plus n minus 1d. So 16/2 in bracket twice of a plus n minus 1, n minus 1 is 16 minus 1, d is 3. So 16/2 is 8, 2 into 5 is 10, 16 minus 1 is 15, 15 into 3 is 45. So 8, 10 plus 45 is 55, 55 into 8 is 440. So it is your S60. So this is your answer for the first part. Let's move to the next part. Second is given a equals 7, a 13 is given, that is 35. So सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं अबाउट a13. a13 को आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस 12d. a की वैल्यू आपको पता है, इट इज 7, सो 35 इक्वल 7 प्लस 12d. 7 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, इट विल बी 35 माइनस 7 इक्वल 12d, और यू कैन राइट इट एज 28 equals 12d और 28/12 equal d. So d की वैल्यू आपकी यहाँ से 7/3 आ जाएगी. 4 के टेबल से we can reduce them, तो d की वैल्यू 7/3. Now you need to find S13. S13 equals 13/2 in bracket twice of a. a is 7 plus n minus 1, it is 13 minus 1. D is 7/3. So 13/2 as it is for the time being. Then 2 into 7 is 14 plus 13 minus 1 is 12. 12 into 7/3. अब 12 और 3 को आप reduce कर सकते हो. 3 and 12 can be reduced as 4. So 13/2, 14 plus 4 into 7. 4 into 7 is 28. So 13/2, 14 plus 28 is 42. Now we can reduce 2 with 42. So it will be 24. Sorry, not 24, it will be 21. So 13 into 21 is 273. So your answer for S13 is 273.
लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है A12। A12 को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? एज A प्लस 11D एज 37। अब यहां से D की वैल्यू आपको दी हुई है तो A की वैल्यू इजीली निकल सकती है। A प्लस 11D, D is 3, 37 on the right hand side, और A plus 33 equal 37. So 33 आपका right hand side पे आएगा तो वो 37 minus 33 हो जाएगा। So it will be 37 minus 33 as 4. A की वैल्यू आपकी 4 आ गई। Now you need to find S12. It is 12 over 2 in bracket twice of A. A is 4 plus n minus 1. N minus 1 is 12 minus 1. D is 3. So 12 over 2 is 6. 2 into 4 is 8. 8 plus 11 into 3. So it is 6. 8 plus 33. 8 plus 33 is 41. 41 into 6. It will be 6 here and 4 6 are 24. So it is 246. So your answer for S12 is 246. Let's do next part. Next part is the fourth one. So here A3 is given. A3 को पहले हम reduce कर लेते हैं। A3 आ जाएगा आपका A plus 2D as 15. Then आपके पास S10 की वैल्यू है। S10 equals 125. Now we need to find D value and A10 value. So सबसे पहले हम क्या कोशिश करते हैं? A3 को रिड्यूस कर दिया और यहाँ से A की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। So A कितना हो जाएगा आपका? 15 minus 2D. अब यहाँ पे S10 को एक्सपैंड करते हैं using SN formula. So 10 over 2 in bracket twice of A. A नहीं पता हमें अभी। n minus 1 that is 10 minus 1. D भी नहीं पता equals 125. 125 as it is. So 10 over 2 को आप रिड्यूस कैसे करोगे? 5. A की जगह आप क्या पुट करोगे जो आपने इक्वेशन नंबर 1 में निकाला है? That is 15 minus 2D. 2 in bracket 15 minus 2D plus 10 minus 1 is 9D. 125 here. अब 5 जो है आपका वो राइट हैंड साइड आ जाएगा एंड इट विल बी 125 over 5. इसको रिड्यूस कर देते हैं। सो इट इज 25 ऑन द राइट हैंड साइड। अब 2 और 15 को मल्टीप्लाई करो, इट इज 30। 2 और 2D को मल्टीप्लाई करो, इट इज minus 4D plus 9D. सो आपके पास 4D आ गया, minus 4D आ गया और plus 9D आ गया। सो दिस इज 5D. 5D plus 30 equal 25. So you get 5D as 25 minus 30. It is minus 5. So D as minus 5 over 5. And you get your D as minus 1. So D is known to us now as minus 1. अब easily हम A10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। A10 क्या होता है? A plus 9D. अभी हमें A की वैल्यू भी पहले निकालनी पड़ेगी ताकि हम A और D की वैल्यू पुट कर सकें। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, 15 minus 2D, D की वैल्यू -1. सो 15 plus 2 कितना हो गया? इट इज 17. सो A is 17 plus 9. D की वैल्यू कितनी है आपके पास? -1. सो 17 minus 9, it equals 8. Let's do fifth part. Fifth part है आपका D as 5, SN as 75. So सबसे पहले हमें SN को ओपन करना पड़ेगा in terms of its formula. So n over 2 in bracket twice of A. A नहीं पता. n minus 1. n क्या है हमारा? 9. 9 minus 1 into D. D क्या है आपका? 5 equals 75. सो अब यहाँ पे आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम पहले ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। तो 8 और 5
आपका हो गया ये 2a प्लस 40। अब यहाँ पे 9 और 2 है, तो 2 को आप राइट हैंड साइड ले जाओ, 75 इंटू 2, और 9 को आप नीचे की तरफ ले आओ। सो यू गेट 75 इंटू 2 ओवर 9। सो 2a प्लस 40 इक्वल्स 150 ओवर 9। अब 150 और 9 हमारा डिविजिबल तो नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 को वापस इधर लेकर जाना पड़ेगा और पूरे से मल्टीप्लाई करना होगा। सो इट विल बी 18a प्लस 360 इक्वल 150। So 18a equals 150 minus 360. So you get 18a as minus 210, a as minus 210 over 18. So 210 और 18 को जब आप reduce करोगे, maximum it will go till minus 35 over 3. 3 से कर सकते हो, 3 से आप जब करोगे reduce तो आपको minus 35 over 3 मिलेगा माइनस। अब हमें निकालना है दूसरी वैल्यू, दैट इज a9। a9 कैसे निकालोगे, इट इज a प्लस 8d। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस 35 ओवर 3। d की वैल्यू आपके पास कितनी है, इट इज 5। सो माइनस 35 ओवर 3 प्लस 40। सो 3 को जब आप इस तरफ लेकर जाओगे या एलसीएम लोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 40 इंटू 3 दैट इज 120 divided by 3. So you get minus 35 plus 120 as 85. 85 over 3. So this is your answer for 5th part. Let's do 6th part now. So it is a as 2, b as 8, sn as 90. So a की वैल्यू दी हुई है, sn की वैल्यू दी हुई है, sn को ओपन करते हैं। So n over 2 in bracket twice of a क्या होता है हमारा, यहाँ पे a क्या दिया हुआ है हमारा 2 प्लस n minus 1 as it is, d की वैल्यू हमें दी हुई है, इट इज 8 इक्वल्स 90। 2 को आप राइट हैंड साइड लेकर जाओगे तो इट विल बी 180, और आउटसाइड ब्रैकेट आपके पास कितना है, n है, 4 प्लस 8n माइनस 8। अब 4 और 8 को आप रिड्यूस कर सकते हो क्योंकि न्यूमेरिकल टर्म्स है। सो 4 माइनस 8 विल बी माइनस 4 प्लस 8n इक्वल्स 180। अब हम ब्रैकेट एक्सपैंड करते हैं, सो इट विल बी माइनस 4n प्लस 8n स्क्वायर इक्वल 180। अब 180 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल 0। अब इसको हम कोशिश करेंगे कि रिड्यूस कर दें, क्योंकि आप देख सकते हो कि हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं। तो सारी वैल्यूज में से आप 4 कॉमन ले लो। पहली वैल्यू के पास बचा 2n स्क्वायर, दूसरी वैल्यू के पास बचा माइनस n, लास्ट वैल्यू के पास आपके पास बचा माइनस 45। 4 नीचे आके 0 हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन क्या बची, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल 0। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। सो 45 इंटू 2 करो पहले, तो 90 आ गया। 90 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि आपका बीच वाली टर्म स्प्लिट हो सके। सो वी कैन राइट इट एज 10 and 9. So you can write 2n square minus 10n plus 9n minus 45 equal 0. अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2 और आप 2n सॉरी, और आपके पास बचा क्या, n माइनस 5। लास्ट 2 टर्म्स में से 9 कॉमन लोगे, सो आपके पास क्या बचा, n माइनस 5 एंड 2n प्लस 9 इक्वल 0। सो n आपकी वैल्यू आ जाएगी एज 5 और दूसरी n की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस 9 ओवर 2। सो नेगेटिव में तो नहीं हो सकते हमारे नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये तो कैंसिल हो गया, n एस 5 ही है आपका आंसर। और अब हमें निकालना है an की वैल्यू। सो an मीन्स a5। a5 को कैसे लिख सकते हो, a प्लस 4d। a आपके पास है 2
और 4 as it is, d की वैल्यू 8. So 2 plus 32. 32 plus 2 is 34. So your answer is 34 here. Let's do 7th part. 7th part है आपका a as 8 and an as 62 and Sn as 210. Find n and d value. So an की वैल्यू है आपके पास, an की वैल्यू को एक्सपैंड कैसे करते हैं, a plus n minus 1 d equals 62. a की वैल्यू पुट कर दो 8 plus n minus 1 d as it is again 62. 8 को आप राइट हैंड साइड ले जाओ तो आपको आंसर मिलेगा n minus 1 into d equal 62 minus 8. 62 minus 8 कितना होता है 54. यहाँ पे आपके पास n minus 1 into d है. अब इसके बाद हम Sn वाला फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि Sn की वैल्यू दी हुई है विच इज n over 2 2a plus n minus 1 into d. Sn की जगह 210 पुट करोगे, n over 2 as it is रहेगा, 2a a की जगह 8 पुट करोगे, n minus 1 d की जगह क्या पुट कर सकते हो 54. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. n over 2 2 into 8 is 16. 16 plus 54 is 70. 70 और 2 को कैंसिल करो 35 आ गया. 35 नीचे ले जाओ 210 over 35 हो जाएगा as n. So it will be 6. It will be divisible with 6. So n की वैल्यू आ गई हमारी. अब हमें d की वैल्यू निकालनी है. इक्वेशन नंबर 1 यूज करो, you will get your answer. So n minus 1 is 6 minus 1 d equal 54. 6 minus 1 is 5. 5d equal 54. d की वैल्यू क्या आ गई आपकी 54 over 5. So this is your answer as d और n की वैल्यू आपकी कितनी है as 6. Let's do next one. This is the 8th one. We are left with 2 more. So we have an value. An is 4. D is 8. Sn is minus 40. So an को पहले तो expand कर लेते हैं. A plus n minus 1. D की वैल्यू 2 है. So this is the expansion. और दूसरी तरफ आपके पास है Sn. तो यहां से पहले हम कोशिश कर लेते हैं कि a की वैल्यू सिंप्लीफाई करके निकाल सके. 2n हो जाएगा, minus 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा. a equals minus 2 इधर जाके 6 minus 2n. So this is my equation number 1. अब हम Sn की वैल्यू पुट करते हैं. So n over 2 twice of a plus n minus 1 d. Sn की जगह आप क्या पुट करोगे minus 14. n as it is twice of a. a कितना है 6 minus 2n plus n minus 1 into d. d कितना है हमारे पास 2. सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं इसको. n over 2 here. This is 12. 2 into 2n is minus 4n. Then 2n plus 2n minus 2. So minus 14 equals n over 2. In bracket 12 minus 2 is 10. Minus 4n plus 2n is minus 2n. 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ. So it will be minus 28 equal. n को 10 से मल्टीप्लाई करो 10n. n को 2n से मल्टीप्लाई करो minus 2n square. अब 2n square और 10 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ. So it is 2n square minus 10n minus 28 equal 0. अब आप देख सकते हो कि दोनों तरफ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं. 2 कॉमन लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं. n square minus 5n minus 14 equal 0. अब आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? सिंप्लीफाई 14 को स्प्लिट करना है such that we can get 5n.
So 2 into 7, right? So minus 2n, sorry, plus 2n minus 7n. It makes minus 5n. अब n कॉमन लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट टू वैल्यूज. लास्ट टू वैल्यूज में से 7 कॉमन लोगे. So we get two values, which is n plus 2 as 0 और n minus 7 as 0. So n की दो values आ गई आपकी minus 2 and 7. So 7 is the right value because n is not negative. n can't be negative. कभी भी n हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमारा n हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है. अब हमें a की वैल्यू निकालनी है. a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यूजिंग इक्वेशन नंबर 1. n is 7. 6 minus 14. 6 minus 14 is minus 8. So your answer a is minus 8 and n is 7. Let's do ninth part. Ninth part में हमें a दिया हुआ है, s दिया हुआ है, n दिया हुआ है, d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो Sn is 192, S8, n की जगह 8 पुट कर दिया. इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं. 8 over 2 ट्वाइस ऑफ a 3 हो गया, प्लस n minus 1, 8 minus 1, d की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, इक्वल्स 192. 8 over 2 को कैसे लिख सकते हो? 4. 3 into 2 6 plus 7d equals 192. अब 4 को आप नीचे ले जाओ, it will be 6 plus 7d equal 192 over 4. इसको कैंसिल कर देते हैं. 4 और 16, 3 बचा, 32, 8, 48. 6 को आप राइट हैंड साइड ले जाओ. So it will be 42 as 7d. d will be 42 over 7. So you get d as 6. So your answer for 9th is 6. Let's do the last one, which is L as 28. That means, or you can write it as an. Last value होती है. S हमें दिया हुआ है 144. There are total 9 terms. That is n as 9. So Sn का फॉर्मूला आपका क्या होता है? n over 2 a plus l. Sn कितना है आपके पास? 144. n कितना है आपके पास? 9 over 2. a कितना है आपके पास? 9 known हमें. l हमें पता है, it is 28. 2 को आप ऊपर लेकर जा सकते हो. So 144 into 2, 288 हो जाएगा. 9 को आप a से भी मल्टीप्लाई करो और 28 से भी मल्टीप्लाई करो. So it is 9a plus 9 into 28. So 9 into 28 is, it is 252. और इधर जाके वो माइनस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड जाके. तो 288 minus 252 कितना हो गया? 36 as 9a और 36 over 9 इक्वल से, और 9 और 36 को आप डिवाइड करोगे तो आपकी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? It will be 4. So this is your answer for question number 3. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. With question number 4, so it says how many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636. इसका मतलब हमें Sn दिया हुआ है, हमें a की वैल्यू दी हुई है, d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 17 और 9 से. So 17 minus 9 is 8. So d आ गया हमारे पास, a आ गया हमारे पास, Sn आ गया. अब Sn का फॉर्मूला जो होता है उसको हम यूज करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा हाउ मेनी टर्म्स, दैट मीन्स n निकालना है हमें. So n over 2 in bracket twice of a plus n minus 1 into d. Sn की जगह आप क्या पुट करोगे? 636. n over 2 as it is. Twice of a. Twice of a means twice of 9 plus n minus 1 as it is. और d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 8.
अब 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, सो इट विल बी 636 into 2 equals n 18 plus 8n here and minus 8. So you get 636 into 2 as 2 here, 1 here, 7, then 6 into 2 is 12, 1 2 7 2. अब हमें क्या करना है, 18 और 8 को सिंप्लीफाई करना है, so this will give you 10, 10 plus 8n. अब आप n को inside bracket ले जाओ, so it will be 1272 as it is, 10n and 8n square. So आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 0 equal 1272 plus 10n plus 8n square. इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, which will be 8n square plus 10n plus 1272. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं पूरी इक्वेशन में से. So 2 कॉमन लेते हैं, आपके पास बचा 4n square प्लस 5n और लास्ट में आपके पास बचा 636 इक्वल 0. सो दिस इज योर इक्वेशन, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्योंकि 2 तो राइट हैंड साइड पे जाके 0 ही हो जाएगा, तो आपके पास है क्या, 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 636 इक्वल 0. अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n हियर. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपका, n इक्वल्स माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d ओवर ट्वाइस ऑफ a. b की वैल्यू कितनी है आपकी, 5 है, माइनस 5 प्लस माइनस d निकाल लेते हैं अलग से, d आपका होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b की वैल्यू है आपकी 5 स्क्वायर माइनस 4ac. So 5 square is 25 and the last one is minus 636, sorry this is minus 1272. क्योंकि आप इसको अगर राइट हैंड साइड पे लेकर जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, so minus 636 is there. So 636 minus 636 into 4 तो ये हो जाएगा आपका 25 plus 10176 and the total will be 10,201. This is the d value. d की आपकी वैल्यू आई है 10,201 ओवर ट्वाइस ऑफ a. a की वैल्यू क्या है आपके पास, 4 है, which is 8. So minus 5 plus minus अंडर रूट 10201 को जब आप सॉल्व करोगे you will get 101. So it is 101 over 8. तो यहाँ पे हमारी दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई आपकी -5 प्लस 101 और एक आपकी आ गई -5 minus 101 over 8. I am solving it here, so it is -5 plus 101 over 8 and other is -5 minus 101 over 8. तो यहाँ पे ये हो गया 101 minus 5, 101 minus 5 is 96 over 8 और यहाँ पे आपकी वैल्यू जो होगी वो -106 over 8 हो जाएगी. तो ये वैल्यू तो हमारी कैंसिल ही हो जाएगी क्योंकि n हमारा कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता. अब 96 over 8 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 and 2, that is 12. n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12. So this is your answer for question number 4. Everyone, let's start with question number 5 of exercise 5.3. So it says the first term of an AP is 5. That means A is 5. Last term is 45. You can write it as AN or L. Then sum. Sum is 400. Now you have to find the number of terms. N निकालना है आपने और D निकालना है, कॉमन डिफरेंस. तो सबसे पहले n निकालते हैं क्योंकि आपको Sn का फॉर्मूला पता है, दैट इज n over 2 a plus l. Sn की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 400. n की वैल्यू आपके पास नहीं है, a की वैल्यू आपके पास 5 है, l की वैल्यू आपके पास 45 है.
सो 5 + 45 कितना हो गया आपका 50, और 2 से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, 2/50 इज 25, और यहाँ पे आपके पास 400 है, 25 आप नीचे ले जाओ, सो इट विल बी 400/25 एज n। तो 25 और 400 को अगर आप रिड्यूस करोगे, सो यू विल गेट 1 here and it is 4, 8, 12 and 16. So n is 16 for us. Now अब हमें d निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। d की वैल्यू कैसे निकालोगे? फर्स्ट टर्म दी हुई है, n आपको पता है, लास्ट टर्म आपको दी हुई है, तो हम यहाँ पे Sn का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। Sn is S16, 16/2 in bracket twice of a की जगह 5 plus n-1 which is 16 - 1। d की वैल्यू आपकी नहीं पता, आपको वही निकालना है, और S16 को कैसे रिप्लेस कर दोगे? बाय 400। टोटल सम कितना है? 400। 16/2 is 8, 2 into 5 is 10, it is 15d। So 400 और 8 को हम नीचे ले जाते हैं डिवीजन में, then you have 10 + 15d। 8 और 400 को आप कैंसिल कर दो, you will get 50, और 10 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, 50 - 10 as 15d। So you get 40 equals 15d, or 40/15 as d। Let's reduce this, so this is 3 and this is 8. That means d is 8/3. Difference is 8/3. n is 16. So this is your answer for question number 5. Let's start with question number 6. So it says the first and last term of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there? What is their sum? So first term आपको दिया हुआ है 17, लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है 350, d आपको दिया हुआ है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? तो सबसे पहले आपको n निकालना है, देन यू हैव टू फाइंड द सम। तो an वाला फॉर्मूला यूज करके n निकाल सकते हैं। an की जगह आप 350 पुट करोगे, a की जगह 17 पुट करोगे, n इज अननोन टू यू, d आपके पास 9 है। 17 को आप माइनस कर दो 350 में से, और राइट हैंड साइड आपके पास क्या बचेगा? 9 - 1 into n-1 into 9. So 350 - 17 is 333 equals n-1 into 9. अब 9 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, so it is 333 divided by 9. So 37/1 हो जाएगा, और जब आप -1 को दूसरी तरफ लेकर जाओगे, so it will become 38 as n. Now you need to find their sum. Sum निकालना है हमें। sum कैसे निकलेगा? Sn, so it equals S38. S38 को आप ये वाले फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो, n/2 a plus an। सो n आपके पास 38 है, 38/2 हो गया। a आपके पास 17 है, an आपके पास 350 है। सो 38/2 is 16, and on the other hand you have 367. 367 और 16 को, sorry 19, this is not 16, it is 19. 38/2 is 19, so 19 into 367 is 6,973. So this is your answer for question number 6. Let's start with question number 7 of exercise 5.3. So it says find the sum of first 22 terms of an AP in which d is 7 and 22nd term is 149. So यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि आपका A22 149 के इक्वल है। A22 को आप कैसे लिख सकते हो? A plus 21D. So 149 equals A plus 21. D की वैल्यू कितनी है आपकी? 7 है। So 149 equal A plus 147.
तो 147 आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो वो माइनस हो जाएगा, वहाँ पे जाके 2 आ जाएगा आपका ए की वैल्यू 2 आ गई। अब आपने निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, दैट मीन्स S22। S22 कैसे निकालोगे, n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 मतलब 22/2, ट्वाइस ऑफ a हमारे पास 2 है, n-1 n हमारे पास 22 माइनस 1 है, d की वैल्यू हमारे पास 7 है। सो 22/2 इज 11, 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 21 इंटू 7, सो यू गेट 11 एंड यू गेट 4 हेयर। उसके बाद आपके पास आया 21 इंटू 7, दैट इज 7, 147। सो फाइनल इज 11 इंटू 151। सो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट योर आंसर। सो 151 इंटू 11 इज 1661, 1661 is your final answer for question number 7. Start with question number 8. So it says find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term is 14 and 18 respectively. So A2 आपको दिया हुआ है 14 और A2 को आप कैसे लिख सकते हो, A plus D equals 14 और A3 आपको कितना दिया हुआ है 18। A3 को आप ओपन करके कैसे लिख सकते हो, A plus 2D। So these are the two equations you have. अब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड में A को एलिमिनेट कर देते हैं और D की वैल्यू निकाल लेते हैं। A और A आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 14 और 18 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, D minus 2D is minus D equal 14 minus 18 is minus 4। तो D की वैल्यू आपकी आ गई -4 ओवर -1, माइनस से माइनस कैंसिल करो, सो योर वैल्यू फॉर D इज 4। अब आपको निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, दैट मीन्स S15। S15 को हम एक्सपैंड करते हैं तो 15/2 ट्वाइस ऑफ A की वैल्यू भी हमें पहले निकालनी पड़ेगी सो दैट वी कैन पुट इन S15। सो D आपके पास 4 है, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करो, 14 इक्वल्स A प्लस 4, D की जगह 4, लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आओ, 14 माइनस 4 कितना हो गया 10। A की वैल्यू आ गई आपके पास 10 और यहाँ पे पुट कर दो, प्लस n-1, 15 माइनस 1, D is 4, so 15/2 as it is, 2 into 10 is 20, 15 minus 1 is 14, so 14 into 4, so 15/2 again as it is, then you have 20 plus 14 into 4 and 14 into 4 is 56, 56 plus 20 is 76, 2 को कैंसिल कर दो 76 से, 76 का आपका हो जाएगा 3 और 8। Now 38 into 15 is 570. So your answer for S15 is 570. Let's start with question number 9. So it says if the sum of first 7 terms of an AP is 49, मतलब S7 आपको दिया हुआ है 49। अब आप इसको एक्सपैंड कैसे करोगे, 7/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1, n क्या है हमारे पास 7 है, तो 7 minus 1 into D। सो अब इसको लिखते हैं एक बार, 49 इक्वल 7/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ A प्लस 6D, सॉरी 6D इट इज। नाउ यहाँ पे 7/2 है, 2 को ऊपर ले जाओ और 7 को नीचे ले जाओ, सो 49 into 2 over 7 इक्वल ट्वाइस ऑफ A प्लस 6D। 7 और 49 को कैंसिल कर दो, 7 आ गया, राइट हैंड साइड से 2 कॉमन ले लो, सो दोनों तरफ आप देख सकते हो कि आपके पास 2 है, 2 से 2 कैंसिल,
So you get first equation as 7 equals a plus 3d. Let's find other one. So S17 आपको दिया हुआ है 289 equal 17 over 2 twice of a plus 17 minus 1 it is 16d. So 2 ऊपर चला जाएगा 289 के पास और 17 नीचे आ जाएगा. The same process as we did in the last one. 17 और 289 को कैंसिल कर दो. 17 into 17 जो होता है it is 289. So 17 into 2 equals राइट हैंड साइड में से 2 कॉमन ले लो. 2 से 2 कैंसिल कर दो. So you get 17 as a plus 8d. This is your equation number 2. तो आपके पास 2 इक्वेशन आ चुके हैं. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और a की वैल्यू या d की वैल्यू निकाल सकते हो. So let's simplify this. So a plus 3d equals 7 and a plus 8d equals 70. a से a कैंसिल हो जाएगा. 3d minus 8d is minus 5d and 7 minus 17 is minus 10. So you get d as 2. 10 over 5 is 2. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. d की वैल्यू आपके पास आ गई. अब आप a की वैल्यू निकाल सकते हो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2. So 17 equals a plus 8 into 2. So 8 into 2 16 होता है. इधर जाके माइनस में हो जाएगा. So your a will be 1. a आपके पास 1 आ गया. d आपके पास 2 आ गया. अब हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब Sn निकाल. So it will be in terms of n, मतलब जो आपकी वैल्यू आएगी वो n के टर्म्स में आएगी. देखो कैसे. n over 2 twice of a 1 हो गया plus n minus 1 as it is d is 2. n over 2 2 plus 2n minus 2. 2 से 2 cancel. So you are left with n over 2 into 2n. 2 से 2 cancel. So you get your answer as n into n. And n into n is n square. So your answer for this is n square. Let's start with question number 10. So it says show that a1, a2 and an form an EP where an defined as below. In the first case an आपको दिया हुआ है 3 plus 4n. तो an का यूज करके आप a1 की वैल्यू निकाल सकते हो, a2 की वैल्यू निकाल सकते हो, ऐसे ही a3, a4 की वैल्यू निकाल सकते हो. Then you have to find sum of first 15 terms. So सबसे पहले n को हम 1 रखते हैं और हमारा a1 कितना हो जाएगा 3 plus 4 1. So ये हो गया आपका 7. अब हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो इट विल बी a2. a2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 plus 4 into 2. 8 plus 3 is 11. n की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी. आप a3 निकाल लोगे. So it will be 3 plus 4 into 3. It is 12 plus 3. It is 15. So आपका AP बन गया 7, 11 and 15 and so on. So this is your AP. अब आपने क्या करना है, सम निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स का, S15 का. So S15 क्या होगा आपका 15 over 2 into 2 into A. A is 7. First term is 7 plus n minus 1. It is 15 minus 1 D. D क्या है यहाँ पे आपका 11 minus 7. 11 minus 7 is 4. So it is 15 over 2. Then it is 14. Then it is 14 into 4. Bracket close. So आपने 14 into 4 करना है और 14 को उसमें add करना है. So you get 70. 56 plus 14 is 70 and here we have 15 over 2. 2 को 70 से cancel करो. You will get 35. 35 into 15 is 525. So this is your answer for the first part. Let's do for the second part similarly. Second is an equal 9 minus 5n. अब a1 की वैल्यू निकालते हैं. 9 minus 5 1.
so you will get 4. A2 निकालते हैं, 9 minus 5 into 2 equal 9 minus 10 is minus 1. A3 is 9 minus 5 into 3, it is 9 minus 15, so minus 4. Sorry, it is 9 minus 15 is minus 6, not minus 4. So you get 4, minus 1, minus 6 and so on. A पता चल गया आपको 4 है. D की वैल्यू निकाल लो, minus 1 minus 4, it is minus 5. D की वैल्यू आ गई आपके पास, A की वैल्यू आ गई. अब आपने निकालना क्या है, S15. So 15 over 2 in bracket twice of A is 4 plus n minus 1, which is 15 minus 1 into D. D is minus 5. So 15 over 2 as it is, 2 into 4 is 8. 8 plus 14 into minus 5. So 15 over 2, 8. 14 into 5 is 0 here, 2 here, 70. So 8 minus 70 is minus 62. 2 and 62 can be cancelled out, so you get minus 31. Now 31 और 51 को multiply कर लो. So 31 और 51 को जब multiply करोगे, you will get minus 465. So this is your answer for second part. Thank you. Let's start with question number 11. So it says, if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square. तो हमें Sn दिया हुआ है, which is 4n minus n square. सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, what is the first term? That is S1. So S1 निकालना है हमें. So S1 का मतलब है कि n आपका 1 है. So 4 1 minus 1 square. So 4 minus 1 is 3. इसका मतलब S1 हमारा जो है वो A1 के भी इक्वल है और A के भी इक्वल है. A मतलब फर्स्ट टर्म, क्योंकि अगर आपको एक टर्म दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसका सम निकालो, तो इसका मतलब क्या है कि 1 नहीं होगा. वैसे ही यहाँ पे S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 3, तो वो किसके इक्वल भी होगा, A के इक्वल भी होगा, फर्स्ट टर्म के भी इक्वल होगा. अब उन्होंने हमसे पूछा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब हमें S2 निकालना है. सेकेंड पार्ट भी आ जाएगा हमारा, S2 निकालना है हमें. S2 का मतलब हो गया कि n आपका कितना हो गया, 2 हो गया. 4 into 2 minus 2 square. So 8 minus 4 is 4. S2 आ गया आपके पास. अब उन्होंने पूछा व्हाट इज द सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म मतलब वो हमसे ये जानना चाहते हैं कि A2 क्या होगा. So A2 कैसे निकलेगा. सेकेंड टर्म निकालने के लिए आपको A, N और D की रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पे हमारे पास D नहीं है, D हमें निकालना पड़ेगा. और D हमारा कैसे निकलेगा, उन्होंने बोला सम ऑफ टू टर्म्स इज 4. तो हमारी AP कैसे एग्जिस्ट करती है, A प्लस D एंड A प्लस D एंड सो ऑन. इसका मतलब सम ऑफ टू टर्म्स क्या है, हमारा 4 है. फर्स्ट टू टर्म्स को ऐड कर दो, A प्लस D इक्वल 4. सो इट इज ट्वाइस ऑफ A प्लस D इक्वल 4. A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आई है. सो दिस इज 6 प्लस D इक्वल 4. और यू गेट D एज 4 माइनस 6 विच इज माइनस 2. D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस 2. अब आपने निकालना क्या है, सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म कैसे निकालोगे, A2 इक्वल्स A प्लस 1D. A की वैल्यू आपकी है 3 प्लस 1, D की वैल्यू है आपके पास माइनस 2. सो 3 माइनस 2 इज 1. अब उन्होंने हमें बोला था दैट यू हैव टू फॉर्म एन AP भी बनानी है हमें. और उन्होंने ये भी बोला है थर्ड टर्म निकालो, 10th टर्म निकालो और nth टर्म निकालो. A3 निकालते हैं. A3 इज A प्लस 2D. A की वैल्यू 3 है, 2 एज इट इज. D की वैल्यू माइनस 2 है. सो 3 माइनस 4 इज माइनस 1. A10 निकाल लेते हैं.
A10 is A plus 10, sorry, not 10, it is 9D. So A is 3, 9, D हो गया -2, so 3 minus 18, it is -15. अब उन्होंने हमें बोला है an निकालो. an कैसे निकलता है? a plus n minus 1d. n को as it is रखना है. a is 3, n minus 1 as it is, d is -2. So 3 plus -2n plus 2 or 5 minus 2n. So an value is 5 minus 2n. This is your answer for question number 11. Let's start with question number 12. So it says find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. So 6, 12, 18 and so on up to 40 integers or 40 terms you can write. So a की वैल्यू हमें पता है it is 6, d is 6 क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबके बीच में 6 का है और n हमारा 40 है. अब हमें निकालना है S40. S40 is equal to 40 over 2 in bracket twice of a, it is 6 plus n minus 1, it is 40 minus 1 into d. So 6 here. 40 over 2 कितना हो गया? 20. 2 into 6 is 12 plus 39 into 6. 39 into 6 is 234. पहले 20 आएगा, फिर 12, फिर आएगा आपका 234. So 20 into 236. 20 into 236. Sorry, it is 246, not 36. 20 into 246 will be 4920. So sum of first positive integers which are divisible by 6 is 4920. Let's start with question number 13. So it says find the sum of the first 15 multiples of 8. So सबसे पहले आपने लिखना है multiples of 8. तो 8 का multiple first होता है 8, then 16, then 24 and so on up to 15 terms. तो यहाँ पे n हमें पता चल गया that it is 15, a पता चल गया that is 8, b पता चल गया that is 8 again, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है. आपने निकालना है Sn. Sn मतलब यहाँ पे हमें चाहिए 15 टर्म्स के लिए, तो S15. So S15 will be 15 over 2 in bracket twice of a plus n minus 1, 15 minus 1 into d. d is 8. So 15 over 2 twice of 8 is 16. 16 plus 14 into 8. So you have 15 over 2. 16 plus 14 into 8 is 112. Now you have to add 16 and 112. It will give you 128. 2 को 128 से reduce करो, it is 64. 64 into 15 is 960. So this is your answer for question number 13. Thank you. Let's start with question number 14. So it says find the sum of the odd numbers between 0 and 50. So odd numbers start कहाँ से होते हैं? 1 से, then 3, next is 5 और 50 से पहले कौन सा होता है? 49. Now we need to find the sum of these all numbers. So sum कैसे निकलेगा? यहाँ पे हमें पता है कि Sn का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन n ही नहीं पता तो कैसे लगाएंगे? तो n कैसे निकाल सकते हो? आपको an दिया हुआ है. an क्या है? लास्ट नंबर. सो an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an हो गया आपका 49, a की वैल्यू 1, n माइनस 1, d इज 2. सो 49, 1 आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ. सो इट विल बी 49 माइनस 1 एज 48 और 2 नीचे की तरफ आ जाएगा and n minus 1 on the right hand side. So 48 over 2 is 24. Minus 1 को आप left hand side ले जाओ, so it will be 24 plus 1. n की वैल्यू 25 आ गई.
अब आपको निकालना है S25 क्योंकि n की वैल्यू 25 है, सो S25. So 25 over 2, I am using this formula, n over 2, a plus an. A is 1, an is, last term is 49. So 25 over 2 in bracket 50. 50 और 2 को reduce कर दो, 25 आ गया. So 25 into 25 is 625. S25 is 625. So this is your answer for question number 40.